Hello everyone, welcome back to this channel, Graduate Yourself. This is Achhi and I welcome you on this channel. So I hope you have watched my previous video, and if you haven't, then I will put the link in the description box. You can go from and watch from there. So the topic for today is micro and macro, means the difference between the micro and macro economics. In previous video we have done about the basics and the introductions of the economics. And so if you watch that video first, then you will understand this video in a more better way. So let's start today's topic without any delay. So first of all, let me tell you that the economics was divided into two parts, which is micro and macro, by an economist Ragnar Frisch, and along with Jan Tinbergen, and he also won Nobel Prize in that. He was the first economist who won Nobel Prize in economics subject, along with Jan Tinbergen, in dividing the economics into two parts, which is micro and macro. So basically, if you talk in general terms, what micro means simply means, micro simply means small, means जो छोटा एरिया जो एक होता है जो कवर करते हैं उसको हम लोग माइक्रो में बोलते हैं, एंड द थिंग विच कवर लार्जर पोर्शन हम लोग उसको क्या कंसिडर करते हैं, मैक्रो. ये जो जनरल सी टर्म है, जनरल टर्म में भी हम लोग माइक्रो को छोटा एंड मैक्रो को बड़ा बोलते हैं. सो नाउ लेट्स सी वन बाय वन पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन these two. So the first point of difference is unit of study. So as I already told you that microeconomics study the only the smaller portion of a thing. So it means smaller portion does means micro यहाँ पे study करती है एक individual को, individual economic units को. Individual economic units में कौन कौन आ जाएंगे, like just like household, farms and industries. But यहाँ पे individual से मतलब नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ only one person है. यहाँ पे हर फैमिली को, जैसे हाउस होल्ड में देखिए, हाउस होल्ड हम लोग आएंगे जैसे लाइक कंज्यूमर्स, जो नॉर्मल कंज्यूमर्स होते हैं जैसे लाइक अस. तो यहाँ पर एक एक फैमिली को यहाँ पे कंसिडर एक इंडिविजुअल कंसिडर करा जा रहा है, तो वो आएंगे हाउस होल्ड में. एंड फार्म्स एंड इंडस्ट्रीज आर द प्रोड्यूसर्स हु प्रोड्यूस द आउटपुट एंड सेल द आउटपुट. मीन्स यहाँ पर माइक्रो में हम लोग देखते हैं कि किस तरह से कंज्यूमर्स मीन्स जो हाउस होल्ड है वो अपनी इनकम को स्पेंड करने डिफरेंट गुड्स पे, एंड जो फार्म्स एंड इंडस्ट्रीज है वो किस तरह से आउटपुट प्रोड्यूस कर रही एंड हाउ दे आर सेलिंग इट. तो हम लोग इसकी स्टडी हम लोग जब करते हैं तो वो आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में. बट अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स इट इज अ स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल. वही जब हम लोग पूरे कंट्री की स्टडी करते हैं, पूरे इकोनॉमी को स्टडी करते हैं, तो वो आता है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स में. If you are studying about whole India, then it will come under macro. But if you have taken any particular state, just like UP, MP or Rajasthan, then it will come under micro. So I hope you are clear with it. Okay, I will read this lines for explanation for you. Micro studies the economic behavior of individual units. It is concerned with how individual make decisions and what affects these decisions. मतलब जो इंडिविजुअल्स हैं लाइक हाउस होल्ड, फार्म एंड इंडस्ट्रीज, वो किस तरह से डिसीजंस ले रहे हैं एंड वो डिसीजंस उनको किस तरह से अफेक्ट कर रहे हैं, तो उसकी स्टडी आएगी माइक्रो में. एंड इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स आर, आई ऑलरेडी टोल्ड कि हाउस होल्ड, फार्म्स एंड इंडस्ट्रीज. एंड अंडर मैक्रो इट्स अ स्टडी ऑफ अ होल इकोनॉमी. Means when we do the study of economy as a whole, it will come under macro. So I hope this point is clear to you, and if you are having any doubts you can ask me in the comment section. So now let's move to our second point. Our second point is focus of study. मीन्स माइक्रो एंड मैक्रो का फोकस क्या रहता है, कौन कौन से वेरिएबल्स रहते हैं जो माइक्रो एंड मैक्रो में जिन पे फोकस किया जाता है. सो इफ यू टॉक अबाउट माइक्रो, देन the variables which are focused in micro is prices and the quantities of individual market. मीन्स यहाँ पर हम लोग इंडिविजुअल मार्केट में देखते हैं कि प्राइजेस क्या चल रहे हैं, प्राइजेस क्या वो लोग फिक्स कर रहे हैं प्रोड्यूसर्स, या फिर और क्वांटिटी कितनी उनकी सेल हो रही है, तो हम लोग उसकी स्टडी करते हैं. एंड किस तरह से okay, I will read this for you. Micro determines the prices and quantities in individual market. It is concerned with allocation of resources among individual firms and industries. मतलब
वो किस तरह से रिसोर्स को एलोकेट कर रहे हैं इन हाउस होल्ड्स में, फर्म्स में, इंडस्ट्रीज में किस तरह से रिसोर्सेज का एलोकेशन किया जा रहा है. And it examine how output produced is shared among those resource owners who cooperate in production of output. और वो लोग देखते हैं जो प्रोड्यूसर्स होते हैं मीन्स वो किस तरह से उनको आपस में एलोकेट करना है रिसोर्सेज को, किस तरह से उनको आउटपुट को सेल करना है, प्रोड्यूस करना है. तो इस सब की स्टडी आती है हमारी माइक्रो में. मीन्स ये जो माइक्रो है वो डील करते हैं कमोडिटी मार्केट एज वेल एज product commodity market and factor market से. अब what is factor and commodity market? Factor market, see, factor market is that market where factor of production is there. मीन्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, हमारे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, मीन्स जहाँ पे हमारे ये सब होते हैं और रॉ मटेरियल्स जहाँ पे प्रोडक्शन फर्दर होता है तो वो हमारे आते हैं फैक्टर मार्केट. एंड कमोडिटी मार्केट जहाँ पे हम लोग अपने गुड्स एंड सर्विसेज को, कमोडिटीज को परचेज करते हैं तो वो हमारे आ जाते हैं कमोडिटी मार्केट में. तो इनकी स्टडी आती है माइक्रो के अंदर. बट इफ यू टॉक अबाउट मैक्रो, तो जो मैक्रो में जो आते हैं वेरिएबल्स आते हैं वो थोड़े लार्जर लेवल पे आते हैं बिकॉज मैक्रो स्टडी द लार्जर पोर्शन, कवर द लार्जर पोर्शन ऑफ आवर इकोनॉमी. सो लार्जर, अब कौन कौन से वो लार्जर पोर्शन हो सकते हैं, जस्ट लाइक टोटल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, employment in aggregate consumption, aggregate saving, investment, and general price level. GP is general price level, and economic growth, output. These are the things or variables which are covered by macro. And prices and quantities are the things which are covered in micro. So I hope you are clear with this point. So let's move to our next point. So our next point of difference is basic parameters. Basic parameters in micro, price is the basic parameter, and in macro, income is the basic parameters. Means in micro, the consumers and producers take decisions on the basis of the prices of the product, and under macro, consumers and producers take the decision on the basis of the income. And next point of difference is different perspective. Perspective means the point of view or the perceptions of the people. So if you talk about micro is a bottom to up, but in macro it is a top down view. Now why micro is bottom up, and by bottom up means नीचे से ऊपर, and macro is top down means ऊपर से नीचे. अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो माइक्रो है वो स्मॉल लेवल पे, मीन्स वो पहले वो छोटी चीज़ों को स्टडी करती फिर वो बड़ी पे जाती है. मीन्स तो यहाँ पे पहले वो सबसे छोटी चीज़ सबसे नीचे होती है तो वो इसलिए वो बॉटम अप से ऊपर जाती है, इसलिए इसको बोला गया बॉटम अप व्यू. पहले वो नीचे वाली चीज़ों को स्टडी करती है फिर वो अप जाती है. एंड मैक्रो तो लार्जर एरियाज को कवर करती है, सो ऑब्वियसली लार्जर एरियाज विल बी ऑन द टॉप. सो ये पहले टॉप चीज़ों को देखती है फिर वो नीचे जाती है. तो माइक्रो इज बॉटम अप एंड मैक्रो इज टॉप डाउन. नेक्स्ट वन इज मेथड्स ऑफ स्टडी. मीन्स इसका क्या क्या तरीका है इसका स्टडी करने का माइक्रो एंड मैक्रो का. इफ यू टॉक अबाउट माइक्रो, इट इज बेस्ड ऑन पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस और पार्शियल एनालिसिस. एंड इन मैक्रो इट यूजेस जनरल एनालिसिस. पार्शियल एनालिसिस मीन्स होता है कि अदर थिंग रिमेन्स कॉन्स्टेंट. मतलब क्योंकि माइक्रो एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि ये सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ को स्टडी करती है और बाकी चीज़ को वो कांस्टेंट रख देती है. मीन्स वो बाकी चीज़ को अज्यूम करती है कि वो कांस्टेंट रहेंगे. सो सिर्फ ये एक साइड को स्टडी करती है, वन साइडेड होती है, इसलिए इसको हम लोग पार्शियल बोलते हैं. पार्शियल मतलब ऑब्वियसली अगर हम लोग जनरल टर्म में देखें तो पार्शियल का मतलब भी हाफ होता है. वो सिर्फ हाफ को स्टडी करती है और जो अदर थिंग्स है वो कॉन्स्टेंट रख देती है. बट इफ़ यू टॉक अबाउट मैक्रो तो सबको कंसिडर करती है, तो ये जनरल एनालिसिस पे बेस्ड है. तो these are the three point of difference of micro and macro. Let's move to our next or last point of difference. So with this we have come to the end of our class. Our last point is nature of assumptions. So in economics, if you talk about economics is all based upon the assumptions. And without assumption, economics is not there, because half of the economics assumptions are there.
Before, if you study economics, before starting any theory, assumption will always be there. एंड इफ इट अगर मैं आपको assumption का मतलब बताऊँ तो assumption मीन्स होता है कि यहाँ पर हम लोग अज्यूम करते हैं, मीन्स हम लोग यहाँ पर सिर्फ अज्यूम करते हैं कि ऐसा इसमें होता है, इसमें हो सकता है. तो हाफ ऑफ द इकोनॉमिक्स और जिससे फुल इकोनॉमिक्स assumption पे बेस्ड होती है कि ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है. तो इन माइक्रो, अब माइक्रो में एंड मैक्रो दोनों में क्या assumptions वाले वेरिएबल है वो हम लोग उसको स्टडी करते हैं. इफ यू टॉक अबाउट माइक्रो, द assumptions वेरिएबल यहाँ पे आउटपुट, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, थ्री वेरिएबल्स आर देयर. OP is output, Y is stand for income. In economics, Y is always stand for income. Always prefer writing short form. That's and OP is output and GPL is general price level. Means output, income, employment and prices गिवन होते हैं. एंड माइक्रो में इन्हीं के बेसिस पे हमें किस तरह से प्रोड्यूसर को रिसोर्स एलोकेशन करना है वो देखता है. मीन्स यहाँ पे हमें सिर्फ माइक्रो क्या स्टडी करती है, सिर्फ इट स्टडीज द प्रॉब्लम ऑफ ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब किस तरह से वो एलोकेट करना है वो सिर्फ देखती है माइक्रो. एंड इफ यू टॉक अबाउट मैक्रो, तो यहाँ पे सिर्फ रिसोर्स एलोकेशन तो होता है बट उसके साथ साथ में रिलेटिव प्राइसेस को भी कंसिडर करते हैं. वहाँ पे माइक्रो में हम लोग सिर्फ जनरल प्राइसेस, सिर्फ एक कमोडिटी के प्राइसेस को ले लेते हैं. बट हेयर वी आर टेकिंग रिलेटिव प्राइसेस ऑल्सो. रिलेटिव प्राइसेस की दूसरी कमोडिटी के भी प्राइसेस को हम लोग यहाँ पे लेते हैं. और किस तरह से कंजप्शन पैटर्न क्या है डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज पे, वो सब गिवन रहता है. उसके बेसिस पे इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट डिटरमाइन होते हैं इन इकोनॉमी में एज अ होल बिकॉज इट्स अ मैक्रो. So with this, we have come to an end of our session. So if you have any doubts regarding this, any of these points or difference, you can ask me in the comment section. And if you find my video useful, please like, share and subscribe to this channel. Graduate yourself. Thank you for watching this. Let's see you in our next video.